शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আজ বসন্ত পঞ্চমী। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনায় আপামর মানুষ। সাথেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপনে মাতলেন তরুণ তরুণীরা। সব মিলিয়ে জমজমাট সরস্বতী পুজো। রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর স্কোয়ারে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের নবনির্মিত অফিসের উদ্বোধন হয়ে গেল। ফিতে কেটে দ্বার উদ্ঘাটন করলেন ক্যাটের মহাসচিব প্রবীণ খান্ডেলওয়াল। আসানসোল, দুর্গাপুর, শিল্পাঞ্চলে সমাজসেবক রূপে খ্যাতি অর্জনকারী কৃষ্ণ প্রসাদ পাবলিক টাইমসের বিশেষ নিবেদন টক টাইমসের মুখোমুখি হলেন এডিটর ইন চিফ বিনোদ জয়সওয়ালের সঙ্গে। কেন তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন, বিধানসভা নির্বাচনে তিনি লড়ছেন, সোজা কথায় সব প্রশ্নের দিলেন উত্তর পাবলিক টাইমসের বিশেষ নিবেদন টক টাইমস অনুষ্ঠানে। বেড়ে চলা পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। আম জনতার মুশকিল আরো বাড়ছে। এর জেরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। পুলিশের লাঠির ঘায়ে দলের কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় অন্ডাল থানায় বিক্ষোভ। বাম ছাত্র যুব সংগঠনের বিক্ষোভে পুলিশের সাথে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি বেঁধে গেল বিক্ষোভকারীদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট পদ পেলেন হায়দার মণ্ডল, সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে শেখ আলাউদ্দিনকে। রানীগঞ্জের বক্তারনগর গ্রামে সরস্বতী পুজোর প্রাককালে 3000 দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো শাড়ি। খুশি প্রাপকরা। আজ বসন্ত পঞ্চমী। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনায় মাতলেন এদিন আপামর মানুষ। এদিকে আবার সরস্বতী পুজো অর্থাৎ বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে। পুজো প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে প্রেমী যুবকের ঢল। সব মিলিয়ে শিল্পাঞ্চল জুড়ে জমজমাট সরস্বতী পুজো। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে সর্বত্রই পালিত হল সরস্বতী পুজো। বাগদেবীর আরাধনায় মাতলেন আপামর মানুষ। রানীগঞ্জের বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজো কমিটিগুলি প্রতিবারের মতন এবারও আয়োজন করেছিল সরস্বতী পুজোর। তবে আয়োজনে অন্যবারের চাইতে আড়ম্বর অনেকটাই কম। অন্যদিকে করোনা প্রকোপ অনেকটাই কাটিয়ে ওঠার পর সরস্বতী পুজো ঘিরে দর্শনার্থীদের উন্মাদনাও ছিল এদিন দেখার মতন। RHS group.
রানীগঞ্জের পাশাপাশি আসানসোলের বিভিন্ন ক্লাব এবং সংগঠনগুলিও আয়োজন করেছিল এদিন সরস্বতী পুজোর পাশাপাশি এদিন আবার বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডেও। সেই উপলক্ষেই মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় প্রেমী যুগলের। ছবিগুলো আমাদের বই কিন্তু এরকমই আছে। Husband, smile please. जयमानस्य दुरित भयाच्च ओम सर्व तीर्थधारी बारी सर्व देव सम्मितं यहं भस्तं দুর্গাপুরের অন্ডালেও এদিন বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজো কমিটিগুলির তরফে আয়োজন ছিল সরস্বতী পুজোর। সব মিলিয়ে শিল্পাঞ্চল জুড়ে জমজমাট বাগদেবীর আরাধনা। पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के मंगलपुर स्क्वायर में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित ऑफिस का उद्घाटन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। उद्घाटन समारोह में राज्य के लगभग 11 जिलों से व्यवसायिक संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए। कैट द्वारा आगामी 26 फरवरी को बुलाए गए भारत व्यापार बंद को सफल बनाने की अपील की गई। रानीगंज के मंगलपुर स्क्वायर में मंगलवार को फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉस्बेकी के नवनिर्मित ऑफिस का उद्घाटन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। अब तक फॉस्बेकी का अपना कोई कार्यालय नहीं था। अब नए कार्यालय का निर्माण हो जाने से फॉस्बेकी से जुड़े कार्यों को करने में सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में राज्य के विभिन्न जिलों से अलग अलग व्यवसायी संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि पहुंचे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई। स्वागत भाषण देते हुए फॉस्बेकी के अध्यक्ष सुभाष अग्रवाल ने संगठन के नए कार्यालय के उद्घाटन को गौरवमय पल बताते हुए कहा कि फॉस्बेकी राज्य के 11 जिलों के व्यवसायी संगठनों एवं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और यह संभवतः कोलकाता के बाहर सबसे बड़ा व्यवसायी संगठन है। ऑफिस के उद्घाटन समारोह पर बतौर इसके प्रेसिडेंट मैं एवं हमारे सारे मेंबर काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। फॉस्बेकी दक्षिण बंगाल के 11 जिलों के व्यवसायिक संगठनों, व्यवसायियों एवं उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है।
एवं बंगाल में कोलकाता के बाहर शायद सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है। आज का दिन हमारे संगठन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा और हम आशा करते हैं कि हम व्यवसाय एवं उद्योग के विकास के लिए और इस क्षेत्र के हित साधन के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और आप सभी के सहयोग से हमारी संस्था एक नई ऊंचाइयों को हासिल करने में सक्षम होगी। वैसे मौका तो था फॉस्बेकी के नए कार्यालय के उद्घाटन का, लेकिन कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने एक तरफ जहां केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष अपनी एकजुटता का परिचय देने की अपील की, वहीं आगामी 26 फरवरी को बुलाए गए भारत व्यापार बंद को भी सफल बनाने का आह्वान किया। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब चाहे समय जितना भी लग जाए, जीएसटी का मसला हल होकर ही रहेगा और व्यवसायी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी के उन सभी जटिल प्रावधानों को हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा, जिससे व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। और कल की बातचीत अधूरी रही है। अगली बातचीत मार्च के पहले सप्ताह में होगी, लेकिन ये बात तय है कि अब 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, जीएसटी का मसला हल हो करके रहेगा, ये विश्वास मैं आपको दे सकता हूँ। जीएसटी के वो सारे प्रोविजन जो हमारे व्यापारियों को हर्ट कर रहे हैं, उनको हर कीमत पर सरकार को हटाना पड़ेगा। उससे कम पर हमारा कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन हमने भी सरकार से ये कहा है, यदि आप सहमत होते हैं जीएसटी को सिंप्लीफाई करने में, जिससे मेरे व्यापारी को परेशानी ना हो, तो सरकार का कर दायरा बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया है, इसलिए कुछ लोग व्यापारियों को कमजोर समझने लगे हैं। अब समय आ गया है कि आगामी 26 फरवरी को बुलाए गए भारत व्यापार बंद को सफल बनाकर हम अपनी ताकत का परिचय दें। कल की मीटिंग के कितने भी पॉजिटिव वातावरण के बाद 26 तारीख का हमारा भारत व्यापार बंद जारी रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और उसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि हमने एक बार, देखिए 6 साल से हमने कोई धरना नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, 6 साल बातचीत के जरिए चीजें ठीक कराते आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो अपने लोग होते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, उनको लगता है कि ये व्यापारी तो कमजोर है। और अगर आपके पास भी कोई कमजोर व्यापारी आता है जो आपको लगता है तो समझ कम है, तो इससे 20 रुपये फालतू दे लो यार, यही तो सारा बोझा इसके ऊपर लाद दो। तो मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ, यदि 26 तारीख को हम सब लोगों ने देश भर के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया, तो केवल जीएसटी नहीं, ई कॉमर्स, फूड सेफ्टी, 28 तरीके के लाइसेंस की जगह 1 लाइसेंस, जीएसटी पर रजिस्टर हर व्यापारी के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जिसका प्रीमियम सरकार भुगतेगी। ऐसे एक नहीं अनेक चीजें तैयार पड़ी हैं। कार्यक्रम में पहुंचे आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुमित सरकार ने कहा कि सिविल सर्वेंट होने के नाते हम लोग सार्वजनिक मंच पर खुलकर अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन व्यापारियों के मन में जो दुख एवं दर्द है वो हम लोगों के भी मन में है। We are all civil servants. If you translate into Bengali or in Hindi, civil servant, you will all know that we are नौकर. So नौकर जो है जो लॉर्ड के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकते हैं। लॉर्ड सेंटर में हो या स्टेट में हो तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, स्पेशली इन दिस ओपन फोरम। नेवरदलेस दर्द सभी का है, जो आप लोग ने कहा है वो भी हम लोग को दिल में छूता है, बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, यही बात है। वन ऑफ द प्रीमियर डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंड ईस्टर्न रेलवे। In Eastern Railway, it contributes about 52% of the revenue earnings, और freight में approximately 70% freight हम लोग ढोते हैं। So Asansol division is one of the premier divisions of Eastern Railway.
बहरहाल इस पूरे कार्यक्रम का संचालन फॉस्बेकी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खेतान ने किया और उन्होंने भी व्यवसायियों की एकजुटता पर जोर दिया तथा फॉस्बेकी की गतिविधियों से सभी लोगों को अवगत कराया। इस अवसर पर आसनसोल रेल मंडल के DRM MK मीना, विष्णु बाजोरिया, मधु दरीपा, कवि दत्त, विश्वदीप दे, RN यादव समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल एवं कोयलांचल में समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कृष्णा प्रसाद पब्लिक टाइम्स की विशेष पेशकश टॉक शो में हुए शामिल। पब्लिक टाइम्स टॉक शो में कृष्णा प्रसाद रूबरू हुए हमारे एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल के साथ। कृष्णा प्रसाद क्यों हुए बीजेपी में शामिल, इस क्षेत्र के शीर्ष तृणमूल कांग्रेस नेताओं से क्यों बनी दूरियां, क्या कृष्णा प्रसाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इन सब सवालों का कृष्णा प्रसाद ने दिया खुलकर जवाब। देखिए हमारी विशेष पेशकश पब्लिक टाइम्स टॉक शो। पहले एक सफल बिजनेसमैन बनकर खुद को स्थापित किया, फिर समाज सेवा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई और अब राजनीतिक पिच पर अपनी नई पारी की शुरुआत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसनसोल के चर्चित समाज सेवी कृष्णा प्रसाद की, जिन्होंने गत 9 फरवरी को बीजेपी में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। कृष्णा प्रसाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए थे और इसके बाद से ही पूरी सक्रियता के साथ पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। आसनसोल समेत जिले भर में बीजेपी के कार्यक्रमों में कृष्णा प्रसाद नजर आ रहे हैं। अपनी राजनीतिक व्यस्तता के बीच समय निकालकर बीजेपी नेता कृष्णा प्रसाद पब्लिक टाइम्स के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक टाइम्स के टॉक शो में तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। पेश है पूरा इंटरव्यू। पब्लिक टाइम्स टॉक शो में पुनः एक बार आप दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच जाने माने हस्ती के रूप में इनकी विख्याति शिल्पांचल में है। भले ही ये किसी राजनीतिक दल से अपना वर्चस्व नहीं बनाया है, परंतु अपनी समाज सेवा के बल पर लोगों के दिलों में राज करते हैं। किसी स्वार्थ से नहीं, बस इनका जज्बा है कि समाज के लिए कुछ करना है और ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि इन शख्स ने समाज के लिए क्या किया। पब्लिक टाइम्स के स्टूडियो में उस शख्स को आने के लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। इन शख्स का नाम है कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी। कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी की पहचान एक समाज सेवी के रूप में है। शुरुआत ही इनकी समाज सेवी के रूप में हुई थी, किंतु वर्तमान में यह एक राजनीतिक दल के सक्रिय कर्मी अपने आप को कहते हैं। कृष्णा गुप्ता जी को दोनों ही रूप में पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। पूरे शिल्पांचल वासियों को भारत माता की जय, नमस्कार। प्रसाद गुप्ता जी, आप अब तो समाज सेवा के साथ साथ एक राज्य के प्रमुख विपक्षी दल के सक्रिय कार्यकर्ता बन चुके हैं और ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जो एक मिसाल कायम की है, क्योंकि हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, आप शायद पहले ऐसे शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के मन से भाजपा आपने ज्वाइन किया, शामिल हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इधर उधर की बातें नहीं करके मैं आपसे डायरेक्ट यही जानना चाहता हूं कि आपकी नज़दीकियां तो तृणमूल कांग्रेस से भी काफ़ी करीब थी, तो फिर आपने भाजपा का दामन क्यों थामा? देखिए, समाज सेवा मुल्क जो हम कार्य कर रहे थे, सामाजिक काम में जो रूलिंग पार्टी थी TMC, उनके नेता से मेरा संपर्क था, इसमें दो राय नहीं है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सबको भी मंच पे अपने बुलाते थे। हमारे लीग क्लब के माध्यम से छठ पूजा होता था, उसमें माननीय मंत्री जी को भी हमेशा हम 9 साल से 10वां साल था, 10 साल से प्लेटफॉर्म पे उन्हीं को बुलाते थे। और अब जानते हैं कि एक रूलिंग पार्टी को लेकर के कोई भी कार्य करिए तो लेके चलना पड़ता है। तो कहीं भी काम करते थे सामाजिक मूल्य का तो उनको लेकर करना पड़ता था, कोई रास्ता था नहीं। वो तो आपको भाजपा में शामिल हुए तो आप भी सामाजिक कार्य करेंगे तो उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। हमारे दर्शक यही जानना चाहते हैं कि जरूर कोई ठोस वजह हुई हो, क्योंकि ये इस अंचल के सत्तारूढ़ दल के 2 पिलर हैं। एक का नाम माननीय मंत्री मौलय घटक जी है, दूसरा का नाम माननीय विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी का है। दोनों के ही साथ आपके अच्छे संबंध थे। तो हमारी जनता, हमारे दर्शक, वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह होगी कि अचानक आपने भाजपा का दामन थामा। देखिए, इन्होंने काफी अत्याचार किया जो पब्लिकली हम नहीं बता सकते हैं। मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे इन्होंने काफी नुकसान दिया है। शुरू से ही इनके साथ में मिलकर के जो काम किए हैं, इतना क्षति पहुंचाया है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और हमेशा शोषण किए। तो भाजपा में आप क्यों शामिल हुए? भाजपा में देखिए, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रेरणा लेकर के कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें समाज मूलक काम करने के लिए हमने देखा कि अगर कोई आज पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में कोई अगर पार्टी है जिनके साथ जुड़ करके अच्छे कार्य किया सकता है, समाज से लेकर के आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के एक मात्र अगर कोई पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इस प्लेटफॉर्म का आने का मतलब ये था कि हम समाज मूलक काम अच्छे ढंग से समाज की उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए। और देखिए, पिछले 10 साल के ये टीएमसी गवर्नमेंट, आज नॉर्थ की अगर बात कर ले, हम पूरे लॉकडाउन के अंदर में जो काम किए, कोई भी आपका विकास का कार्य नहीं हुआ। हम प्रत्येक घरों में, एक एक झोपड़ी में, एक एक घर में हम जा करके देखे, छत पे पानी गिर रहा है, छत क्रैक है, टूटा हुआ है, कभी भी दुर्घटना घट सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये छोटी छोटी बच्ची हमने देखा, 1 महीने के बच्ची जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनका छत टूटा हुआ है, नीचे में देख रहे कि मिट्टी का पानी नीचे से निकल रहा। इतनी दर्दनाक स्थिति है पूरे नॉर्थ में, आप बयान सोच नहीं सकते। इसको देखते हुए हमको लगा कि हमको समाज में आगे आना चाहिए। मैं राजनीतिक में नहीं आना चाहता था, समाज से मूल काम करना चाहता था और बिजनेस व्यापार से जो भी अंश समाज के लिए हो, जो भी हमसे बन पड़ता था, वो दान स्वरूप समाज के हित के लिए हम करते थे। तो मैंने ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जब हम लोगों ने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि आपने नड्डा के मन से भाजपा ज्वाइन किया, तो उसके बाद हम लोगों के सोशल मीडिया पेज पर आपके विरुद्ध अगर सपोर्ट में बयान आया तो कुछ विरोध में भी बयान आया। ऐसे लोगों के प्रश्नों को मैं फिर आपके पास दोहराना चाहता हूं कि आपने अपने आप को बचाव के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, चूँकि आप अपने आप को तृणमूल में या सत्तारूढ़ नेताओं के साथ रहकर सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे और इसीलिए क्यों आपने भाजपा ज्वाइन किया, तो ये कितना सच है? देखिए, हमने जीवन में आज 28 साल से कार्य कर रहे हैं, हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। जो भी बिजनेस किया है, जिस भी पूरा हिंदुस्तान के अंदर में अपनी जो कंपनी है, आज 600 वर्कर जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है 2000 से ज़्यादा,
और जो भी ECL वगैरह के अंदर में काम करते हैं वो एक नंबर पेन पेपर के साथ में ECL और रेल के साथ में काम है। कोई गलत काम नहीं, कोई ये लोग का चैलेंज है कोई भी तरह का किसी भी कार्य में कोई डर के भय होकर के नहीं। इन लोग जो शोषण कर रहे हैं, इन लोग जो गरीब तबके को लोग को असहाय लोग को सता रहे हैं, लोग आप सोच सकते हैं लोग डर से नहीं निकल रहे हैं, उनका इतना भय कर रहे हैं लोग। हमने बहुत सारे हमसे लोग मिले हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बीजेपी नहीं कर सकते, बीजेपी पार्टी में नहीं जा सकते, प्रोग्राम नहीं कर सकते, इतने लोग डरे हुए हैं। हर माने किस आपको बिजनेसमैन की बात करें या जो रोजगार माने रोज जो 300-400 रुपया कमाते उस तरह के लोग का बात करें, ऐसे अन्य को हजारों के लाखों की संख्या में। तो ये देखें कि ये जो डर भयभीत किसी ना किसी को मान लीजिए कि ये जो आदमी समाज मुल्क अच्छा काम करना चाहता उनको सभी को आना चाहिए, इसलिए हम इस पार्टी में आए। क्या लगता है आपको कि अगर आपका पार्टी आपका दल अगर आपको मलय घटक के खिलाफ लड़ने के लिए टिकट दे तो आप उस पर आपके क्या विचार होंगे? देखिए अभी हमने 9 तारीख को ज्वाइन किया बीरभूम के पुण्य धरती तारापीठ माता जी के आशीर्वाद से पूजा अर्चना करके हमने ज्वाइनिंग किया। वहाँ से परिवर्तन यात्रा शुरू हुआ, रथ यात्रा शुरू हुआ है। तो ये परिवर्तन यात्रा पूरा पश्चिम बंगाल में घूमेगा और आपको मैं बता दे रहा हूँ 2021 में इनका सफाया है। अब की बार बंगाल में मोदी सरकार, अब की बार बंगाल में 200 पार, ये जो नारा है। और आपको जो आप बोलना चाहते हैं ये पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट। हम साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम बूथ लेवल में काम कर रहे हैं, बूथ को लोग को जोड़ रहे हैं। हम हर बूथ में जाकर के हर एरिया में एकदम नीचे तबके को लोग से जोड़ करके हम काम कर रहे हैं। ये पार्टी का सिद्धांत है, किसको टिकट देंगे। कृष्णा प्रसाद जी, ये जो बातें आप साधारण कार्यकर्ता की कह रहे हैं वो तो शुभेंदु अधिकारी भी अपने आप को साधारण कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमको अगर पोस्टर लगाने का मौका मिले तो हम पोस्टर भी लगाना चाहते। किंतु हमारी जनता, हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो आखिर आपसे पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, अगर आपको मलय घटक के विरुद्ध खड़ा करती है पार्टी, ये तो पार्टी का निर्णय होगा खड़ा करेगी कि नहीं, अगर खड़ा करती है तो आपके सामने क्या मुद्दे रहेंगे? आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस चुनौती को कैसे निपटेंगे? मैं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि जहां से हम लोगों के जो मंत्री जी हैं कोई भी विकास के काम नहीं किए, बेरोजगारी चरम सीमा पार है, लोग के पास रोजगार नहीं। उन्हीं के इलाका में, हर इलाके में देख लीजिए, आप जाकर के देखिए लोग बेरोजगार हैं, रोज खा नहीं सकते हैं वहां पे। अब क्या बताएं, आप चैनल पे मत बुलवाइए ज्यादा बात, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। रोड सही से नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गिरमिट में गए थे, लोग पानी में बोल रहे हैं कि 3 दिन 4 दिन बाद नहाते हैं। इमेजिन कर सकते आप, कल्पना कर सकते कि हम लोग कहां पे आके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मैंने राजनीतिक दलों का जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा शोषण रहा है, पहले ग्रुपबाजी के चक्कर में था और आज डायरेक्ट प्रतिद्वंदी के रूप में आप खड़े हुए हैं, उस रूप में हैं। इन दोनों ही मुद्दों को, इन दोनों ही तरह के उलझनों को, आपके ऊपर दबाव को किस तरह देखते हैं? देखिए मेरे ऊपर इन लोगों का काफ़ी दबाव है। आप जानते हैं कि मेरा पूरा बिजनेस को बंद कर दिए, पूरे ECL के अंदर में पूरे बिजनेस को बंद कर दिए हैं। मेरे करीब 150 मेरे जो भी वर्कर थे, जो भी हमारे लोग थे, वो बेकार हो गए हैं। और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचाया है। लेकिन हमने ये बिजनेस को छोड़ दिया कि हम 2-3 महीना कोई काम नहीं करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे, आम जनता के पास जाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। और इस बार आपको बार बार बोल रहे हैं, हम लोग पूरे टीम, क्योंकि भाजपा ये बहुत बड़ा परिवार है, हम लोग पूरे संगठन के लोग मिल करके और
हर अंचल में काम करेंगे और प्रत्येक डोर टू डोर, प्रत्येक उस व्यक्ति के पास जाएंगे जहां से भाजपा के लिए वोट किया जाए। ये भय जो है लोग, भयभीत है जो लोग, उनको मैं आश्वासन देता हूं, हमारी पूरी टीम, पूरा भाजपा परिवार आश्वासन देता है कि भय मुक्त हम लोग करेंगे। टीएमसी को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे 2021 में। और इस बार मैं ये भी बता दे रहा हूं, ये पश्चिम बर्धमान में 9-0 होने जा रहा है, वो आप देख लीजिएगा। और एक आखिरी सवाल आपसे, ये पूरे पार्टी के आइडियोलॉजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी के सिद्धांतों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ कि उनके पार्टी में जाने से, भाजपा में जाने से भाजपा को राजनीतिक रूप से क्या लाभ मिल सकता है और यहाँ के प्रमुख जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको क्या नुकसान होता है एज ए कृष्णा प्रसाद गुप्ता के रहने से और नहीं रहने से? देखिए, इसमें है यंग जनरेशन में काफी उत्साह बढ़ा है। आपके आने से उत्साह बढ़ा है? नहीं, मेरे आने से बोलने के नहीं, वो लोग चाहते थे। ये तो 2000 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पिछले लोकसभा चुनाव में, इससे उसमें भी यंग जनरेशन का जो वोट है और राजनीति माने वोट की जाए तो उसमें तो मोदी को यंग जनरेशन का लोग नहीं, मेरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, मेरा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, मेरा मुद्दा इस अंचल में कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी से है कि कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी के भाजपा में आने से किन किन क्षेत्रों में विरोधियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपकी राय में? डरे हुए हैं, भयभीत है, और मैं इनको आपके इस स्टूडियो से बोल रहा हूं कि इस बार नॉर्थ हो साउथ हो कहीं से टीएमसी जीतने वाली है। इनको बहुत चुनौती का उनको भी सामना करना पड़ेगा। ये थे हमारे कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी, जो समाज से कृष्णा प्रसाद जी, सॉरी मैंने बार बार कह दिया कृष्णा प्रसाद जी, जो समाज सेवा के रूप में अपनी पहचान बनाई थी और इस पहचान का लाभ अब राजनीतिक पार्टी भाजपा को सीधे तौर से मिलने जा रहा है, ऐसा विश्वास कृष्णा प्रसाद जी का है। और मैं भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। मेरे समूचे दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये जिस भी मकसद से आए हों, आज बसंत पंचमी का दिन है, मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं, पूरे परिवार को, और ये माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि माँ सरस्वती इनकी मनोकामना पूरी करे, इनकी लड़ाई में इनका साथ दे। कृष्णा प्रसाद जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी पूरे टीम को, रिपब्लिक टाइम्स को पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को पूरे दर्शकों को नमस्कार, पूरे শিল্পাঞ্চল वासियों को नमस्कार, धन्यवाद। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में
प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc davps raniganj.org
Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622, 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। पेट्रोल डीजल की रोज बढ़ती कीमतों के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 54 पैसे और डीजल 83 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है और लोगों में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज शहर के लोग भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। सरकारी तेल कंपनियां पिछले एक हफ्ते तो फ्यूल की कीमत में लगातार इजाफा कर रही है। आज की बढ़ोतरी के बाद ईंधन के दाम देश में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में XP पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई। वहीं कई शहरों में 100 रुपए लीटर के करीब पहुंच गया है। इधर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में कमी होने के कोई आसार नहीं है। এই বিষয়ে একটাই বলতে চাই, সরকারের কাছ থেকে যাতে তেলের দামটা কমে, কারণ দিন আনা দিন খায় যেসব মানুষ তাদের পক্ষে এই মূল্যহারে দাম যদি তেলের বাড়ে, জিনিসপত্রেরও দাম বাড়বে, সরকারের আম পাবলিকের প্রচুর কষ্ট। তো সেটাই প্রত্যেক সরকারের কাছে আবেদন যেন তেলের দামটা কম হয় আর যেন সরকার তেলের দামের কাছে ট্যাক্সটা আরও কম নেয়। রাজ্য নিয়ে নিচ্ছে 37 টাকা, কেন্দ্র নিয়ে নিচ্ছে 17 টাকা। তেলের দাম তো কমই, সরকাররা যাতে ট্যাক্সটা কম নেয় সেটা মেন বলা হচ্ছে। সব কিছুতেই তো ট্যাক্স দিচ্ছে। কী বলবো দাদা, এখন তো গাড়ি ছেড়ে দিতে হবে চালানো, যা তেলের দাম বাড়ছে দিনকে দিন। এবার তো 90 পার করে গেল এবং একটা মধ্যবিত্ত পরিবার যারা গরিব তারা কীভাবে চালাবে? ডিজেলের দাম বাড়ছে, এর জন্য জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। সরকার তো পেমেন্ট বাড়াচ্ছে না, সরকার জিনিসের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। সরকারকে বলতে চাই যে সরকার একটাই অনুরোধ যে একটু দেখুন, একটা লকডাউনের পর আমাদের খুবই অবস্থা খারাপ।
কোনো রকমে বেঁচে উঠেছি। তারপরে যদি জিনিসের দাম এরকমভাবে বাড়তে থাকে তাহলে আমরা কোন দিক থেকে চালাবো বলুন? এটা তো মানে সরকারকে ভাবনা চিন্তা করা উচিত। এবার কী করবো, গাড়ি ছেড়ে আমাদেরকে সাইকেল নিতে হবে বা ঠেলা চালাতে হবে, আর গাড়িগুলো শোরুমে থাকবে। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 54 पैसे और डीजल 83 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और डीजल 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 75 पैसे और डीजल 86 रुपए 72 पैसे प्रति লিটার है। এই যে তেলের দাম বাড়ছে এই বিষয়ে আপনারা কি বলতে চাইছেন? আমাদের মানে যতটা বেশি কামাই হচ্ছে তাতে বেশি তেলটা বেড়ে যাচ্ছে। আগে ছিল 83 টাকা, এখন হয়ে গেছে 90 টাকা 56 পয়সা। এখন বুঝতে পারছি না কত টাকা যে বাড়াবে এখানে। এটাকে আমার চলা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদেরকে সাইকেল নিয়ে চলতে হবে। কেন্দ্র সরকারের তো কোনো ফরক পড়বে না, পড়বে তো আমাদের আম জনতাদের না, আমাদের আম জনতাদের। কেন কেন্দ্র সরকারদের ঠিকই চলে যাবে কিন্তু আমাদের চলবে না জিনিসগুলো। কেন কি আমাদের এখান থেকে টাকা কমছে, আমাদের স্যালারি থেকে স্যালারি বাড়ছে না, কিন্তু তেলের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আমরা দূর দূর যেতে হচ্ছে, কখনো কুলটি, কখনো বরাকর, কখনো এদিক ওদিক আমাদের আউট স্টেশনে যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে কি তেল আমাদেরকে সেরকমই ভরছে, কিন্তু আমাদের লিটার কমে যাচ্ছে। আমাদের কোম্পানি তো তেলে पयसा দিচ্ছে না। सरकार का कहना है कि अक्टूबर 2020 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव करीब 50% तक बढ़कर $63.3 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसकी वजह से तेल रिटेलिंग कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत में पेट्रोल डीजल का दाम इतना क्यों बढ़ गया है। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल का खुदरा भाव वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव से लिंक है। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना होगा, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव चढ़ता है तो ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाता है, लेकिन जब कच्चे तेल का भाव कम होता है उस वक्त सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर टैक्स का बोझ डाल देती है। इस प्रकार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होने से आम लोगों को कुछ खास राहत नहीं मिलती है। सर दाम बढ़ना तो नहीं चाहिए, अस्तर हर एक दिन बढ़ रहा है, इसको मिनिमम 50 में लाना चाहिए कम से कम। वो दाम अच्छा 60-62 रुपया ठीक था सर। अभी तो सर कितना हो गया 83 प्लस 1.3 है, 83 रुपये 13 पैसा। अब वो तो ज़्यादा ही हुआ सर, बहुत ज़्यादा। तो 100 रुपये का लगभग वो पहुँच जाएगा, फिर गाड़ी वो आदमी रखेगा, बाइसाइकिल भी नहीं साइकिल चलाएगा। सरकार टोटल फेलियर है। गैस का दाम बढ़ेगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा। क्या चीज़ है, 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, अगले कुछ महीने पहले 60 रुपये किलो आलू बिक रहा था। अब आप बताएं, गरीबों का सबसे बड़ा कहते हैं गरीबों का मसीहा है। गरीब क्या कर रहे हैं? उनका तो ना खाना हराम है ना मरना हराम है, दोनों तरफ है। सरकार मरने नहीं देता है और सरकार जीने नहीं दे रहा, दोनों तो वही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। নবান্ন অভিযানে গিয়ে পুলিশের নির্মম লাঠির ঘায়ে মৃত্যু হয় দলের কর্মী মইদুল ইসলাম মিদ্দার। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অন্ডাল থানায় বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশের সাথে রীতিমতো বচসা থেকে হাতাহাতি বেঁধে যায় বাম ছাত্র যুবদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। নবান্ন অভিযানে গিয়ে পুলিশের নির্মম লাঠির ঘায়ে মৃত্যু হয়েছিল দলের কর্মী মইদুল ইসলাম মিদ্দার। আর এই ঘটনার প্রতিবাদেই রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে বাম ছাত্র যুব সংগঠনগুলি। এদিন অন্ডাল থানাতেও সিপিএম এর দামোদর অজয় সাউথ লোকাল কমিটির তরফে অন্ডাল থানায় বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের ঢুকতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই পুলিশের সাথে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় বাম ছাত্র যুবদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এক বিক্ষোভকারী বলছেন, আজকে বিক্ষোভ শুধু আমাদের নয়, গোটা রাজ্য জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুবরা আজকে এই বিক্ষোভ করছে, থানা ঘেরাও চলছে। তার কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন যে 11ই ফেব্রুয়ারি যে নবান্ন অভিযান হয়েছিল সেখানে এই দলদাস পুলিশ, মেরুদণ্ডহীন পুলিশ যেভাবে শিক্ষিত বেকার যুবকদের হাতে যেভাবে পুলিশের হাতে শিক্ষিত বেকার যুবকদের খুন হতে হয়েছিল আপনি জানেন। কালকে মইদুল ইসলাম মিদ্দা কীভাবে খুন হয়েছে,
পুলিশের দলদাস পুলিশের হাতে। তার প্রতিবাদে গোটা রাজ্য জুড়ে এই ধিক্কার সভা চলছে। আমাদের অন্ডালেও হয়েছে, অন্ডাল থানাতেও হয়েছে, কিন্তু অন্ডাল থানায় এক বিরল অভিজ্ঞতার আমরা রাজ্য জুড়ে যেমন হচ্ছে এখানেও হলাম, এটা আমাদের কাছে কোনো বিরল অভিজ্ঞতা নয়। পুলিশ অন্ডাল থানায় কয়লা চোরদেরকে বড়বাবু রুমে ঢুকিয়ে গল্প করে ঠান্ডা ঘরে বসায়, কিন্তু যখন বেকার ছাত্র যুবরা যারা এসছে প্রত্যেকের ডিগ্রি আছে, তারা যখন সামান্য থানাতে আজকে এই শান্তিপূর্ণ মিছিলে এসছে, পুলিশ দেখছি ব্যারিকেড করে নিয়ে আসে। আমরা এর বিরুদ্ধে বলছি এই দলদাস পুলিশকে আমরা কোনো রকম কিছু না, এটা আমাদের গোটা রাজ্যের ছাত্র যুবের ধিক্কার সভা, তাই আমরা এসেছি। এই পুলিশের ওপর আমাদের বিশ্বাস নেই, আমরা জনগণের কাছে ছেড়ে দিয়েছি এর বিচার, এবং এই বিচার কিভাবে করতে হয়, এই লড়াই কিভাবে করতে হয় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র যুবন জানে, এবং ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে এই তৃণমূলকে এবং এই তৃণমূলের দলদাস পুলিশকে বুঝিয়ে দেবে। কারণ 2 মাস পরেই সরকারটা থাকবে না, সরকারটা বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকারই হবে, এবং তখন এই পুলিশদের কি অবস্থা হবে সেটা দেখার জন্য আমরা আছি। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক গঠিত হওয়ার পর তার সূচনা করা হলো। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয় হায়দার মণ্ডল এবং সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে শেখ আলাউদ্দিনকে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের কমিটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলো এদিন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপিত হয় পাণ্ডবেশ্বরের মিলন লজে। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আফরোজ, পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ব্লক নেতৃত্ব। এই সভায় নবনিযুক্ত মাইনরিটি সেলের সদস্যদের সংবর্ধিতও করা হয়। সভায় পাণ্ডবেশ্বর ব্লক মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে হায়দার মণ্ডলের নাম ঘোষণা করা হয়। সেক্রেটারি হিসেবে শেখ আলাউদ্দিন সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্বের নাম ঘোষণা হয়। মাইনরিটি সেলের জেলা প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আফরোজ বলেন, 2021 বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসই সরকার গঠন করবে এবং তাতে মাইনরিটি সেলের ভূমিকা থাকবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, দিদি মমতা ব্যানার্জি 294 जो सीट है उसमें एक ही कैंडिडेट, उनका नाम है ममता बनर्जी। उनका छप पर सब लड़ेगा, किसी का करिश्मा उरिश्मा नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी का करिश्मा। आपका भी नाम एमएलए सीट के लिए गर्दिश कर रहा, हम लोग सुन रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, हम पार्टी का कर्मी है, हम दीदी हमको जो बोलेंगे, मंत्री बनाएंगे तो ठीक है, संतरी बनाएंगे तो भी ठीक है, हम दीदी का सैनिक है, यही हमारा सबसे बड़ा परिचय, सबसे सुख का बात है। आप लोग कितना एक्सपेक्टेशन है, कितना सीट आप लोग ला रहे हो बंगाल में? देखिए, अभी से तो बोलना ठीक नहीं है, मगर ये बात जरूर जे जो जितना लाभ झाप लम्फो झम्फो करे, हाँ, लास्ट 59 में वही हवाई चोटी उठेगा। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, পাণ্ডবেশ্বর। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকুন। रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।
রানীগঞ্জের বক্তানগর গ্রামে সোমবার সরস্বতী পুজোর প্রাক্কালে গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো শাড়ি। বিজেপির আসানসোল দক্ষিণ মণ্ডল 4-এর উদ্যোগে এবং বিজেপি নেতা জয়দেব খাঁয়ের সহযোগিতায় প্রায় 3000 জন দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এই শাড়ি। খুশি প্রাপকরা। রানীগঞ্জের বক্তানগর গ্রামে বিজেপির আসানসোল দক্ষিণ মণ্ডল 4-এর পক্ষ থেকে এবং বিজেপি নেতা জয়দেব খাঁয়ের সহযোগিতায় সোমবার সরস্বতী পুজোর প্রাক্কালে প্রায় 3000 গরিব এবং দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো শাড়ি। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘুরুই, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরিজিৎ রায়, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক বাপ্পা চ্যাটার্জি, অমিতাভ ঘোষাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজেপির এই উদ্যোগে খুশি প্রাপকরা। সঞ্জয় ভান্ডারের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। আজ বসন্ত পঞ্চমী। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়ে ঘরে ঘরে বাগদেবীর আরাধনায় আপামর মানুষ। সাথেই বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপনে মাতলেন তরুণ তরুণীরা। সব মিলিয়ে জমজমাট সরস্বতী পুজো। রানীগঞ্জের মঙ্গলপুর স্কোয়ারে ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের নবনির্মিত অফিসের উদ্বোধন হয়ে গেল। ফিতে কেটে দ্বার উদ্ঘাটন করলেন ক্যাটের মহাসচিব প্রবীণ খান্ডেলওয়াল। আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সমাজসেবক রূপে খ্যাতি অর্জনকারী কৃষ্ণ প্রসাদ পাবলিক টাইমসের বিশেষ নিবেদন টক টাইমসের মুখোমুখি হলেন এডিটর ইন চিফ বিনোদ জয়সওয়ালের সঙ্গে। কেন তিনি বিজেপিতে যোগদান করলেন, বিধানসভা নির্বাচনে তিনি লড়ছেন, সোজা কথায় সব প্রশ্নের দিলেন উত্তর পাবলিক টাইমসের বিশেষ নিবেদন টক টাইমস অনুষ্ঠানে। বেড়ে চলা পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। আম জনতার মুশকিল আরো বাড়ছে। এর জেরেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। পুলিশের লাঠির ঘায়ে দলের কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় অন্ডাল থানায় বিক্ষোভ। বাম ছাত্র যুব সংগঠনের বিক্ষোভে পুলিশের সাথে বচসা থেকে ধস্তাধস্তি বেঁধে গেল বিক্ষোভকারীদের। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট পদ পেলেন হায়দার মণ্ডল, সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে শেখ আলাউদ্দিনকে। রানীগঞ্জের বক্তানগর গ্রামে সরস্বতী পুজোর প্রাক্কালে 3000 দুস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হলো শাড়ি। খুশি প্রাপকরা। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইউর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।